Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to YourPedia. So I have a very important announcement to make. So today we are going to start a new batch for GATE 2022 for civil engineering, and we are starting with RCC, reinforced cement concrete. Now in this subject, what actually we'll be covering and when it will start. So it will be starting at every day from 9 p.m. onwards. Okay, this will be a premiere. All right, and the topics that will be covered will be discussed to you, and what you need to do is you need to take a pen and a copy and please make proper notes while studying so that it helps you in retaining everything. Now what else will be covered? We'll be covering topics, complete subject will be covered. Apart from that, we'll be taking interview questions as well, because you will be studying this RCC for the point of view of doing either MTech or PhD or for going for PSUs or engineering services anywhere. So interview are a must. So the number of questions related to interview will be taken care of. Apart from that, we will also look at what are the projects that you can make if you are studying RCC. Okay, projects related to RCC. This will be useful for third year and final year students. Also, we will be exploring some abroad opportunities. Like if you are from BTech student, then what are the abroad opportunities for doing internship? If you have done your BTech, then MS abroad. If you have done MTech, then PhD abroad. We'll look into that opportunities also. Plus your post-GATE counseling. Okay, post-GATE counseling, we'll look at that also. So this is not just conventional RCC for GATE we are studying. We are taking care of complete career. Okay, your complete career. So hold tight, make notes, do proper calculation, and I wish you all the best for your exam. Thank you. Hi everyone. So today we are going to start the last part for WSM, that is analysis of T and L beams. ओके, इसका हमें डिज़ाइनिंग नहीं पढ़ना है क्योंकि LSM के इसमें भी यूज़ नहीं है, डिज़ाइनिंग नहीं आता है, सिर्फ हमें क्या पढ़ना है इसका एनालिसिस पार्ट. अब देखो टी बीम्स और एल बीम्स होती क्या है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं दैट व्हाट एक्चुअली आर टी बीम्स एंड एल बीम्स. मान लेते हैं दैट वी हैव इस तरीके का कोई फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है. ओके, और यहाँ पे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, फिर लेट्स से इट इज अ स्लैब. इस जगह पर इतना बड़ा एक स्लैब में लेट्स से यहाँ पे इतने सारे स्लैब्स हैं. ओके, लेट मी जस्ट एक्सटेंड दिस पार्ट अ बिट. ठीक है, इतना बड़ा हमारे पास में क्या है, स्लैब है. तो यहाँ पे ऐसा मान लो. ओके, अगर मैं इसका, ये तो हम ऊपर से देख रहे हैं, प्लान से देख रहे हैं, अगर इसको तो साइड एलिवेशन से या क्रॉस सेक्शन से बताऊं तो इट विल लुक समथिंग लाइक, कुछ ऐसा दिखेगा ये हमारा सेक्शन साइड में. इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस, करेक्ट. और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इट विल बी नॉट लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस. ओके, तो अब देखो टी बीम्स और एल बीम्स कहाँ पे दिखाई दे रही. अगर इसको हम लोग यहाँ से कट कर दें, सो व्हाट यू थिंक इट इज, दिस इज एन एल बीम. ये हमारे लिए क्या है, दिस इज एन एल बीम. और आपको ये दिख रहा होगा इसके सेंटर से अगर मैं इसे कट करूं, ओके लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, दिस वन. सो दिस लुक्स लाइक अ टी बीम. ओके, दिस लुक्स लाइक अ टी बीम. ये चीज क्लियर हुई है, एल बीम क्या है, टी बीम क्या है. ओके, तो आपको एल बीम्स हमेशा एंड्स पे मिलेंगे, एक्सट्रीम से, और हमें टी बीम हर सेंटर पे मिलते जाएंगे. अब इसके अंदर दो तरीके से कास्टिंग होती है. ओके, टू टाइप्स. टू टाइप्स ऑफ कास्टिंग. फर्स्ट आता है आइसोलेटेड
and second is monolithic. Okay, isolated and monolithic. Isolated का मतलब क्या है? Isolated का मतलब है कि बीम और स्लैब, ये आपको दिख रही है, दिस इज अ बीम, लेट मी मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर, लेट्स से दिस इज अ बीम, ठीक है, ये जो हमने डिजाइन किया है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, हो सकता है कि यहाँ पे सिंगली या डबली रेनफोर्स व्हाटएवर, यहाँ पे रेनफोर्समेंट होगा समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज अ बीम. अगर ये बीम और ये स्लैब अगर अलग अलग कास्टेड है, एक साथ कास्ट नहीं कर रखा है, सो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड. ओके, और अगर बीम को और स्लैब को साथ में कास्ट कर रखा है, ओके, सो दैट गिव्स अस मोनोलिथिक. ओके, देखो यहां पे बताता हूं वापस से. आइसोलेटेड इज बीम्स एंड स्लैब्स आर कास्टेड सेपरेटली, अलग अलग, और ये beams and slabs are casted together. Beams and slabs are casted together. तो दोनों के लिए अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं. अब इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस पार्ट. एनालिसिस के पहले एक स्टेप बहुत जरूरी है, दैट इज टू फाइंड द इफेक्टिव विड्थ. ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको टी बीम बताता हूँ. टी बीम कैसा दिखेगा, एक बार से फिगर बना लेते हैं जनरल. दिस इज अ टी बीम, क्योंकि यही आपको एलएसएम में भी काम आएगा. एंड दिस इज एन एल बीम. ओके, दिस इज एन एल बीम. दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्लेंज. डेप्थ ऑफ फ्लेंज कहते हैं इसको. दिस इज आर इफेक्टिव डेप्थ डी. ये हमारे लिए हो गया एरिया ऑफ स्टील. दिस इज बी विड्थ. ओके, और इसके अलावा यहां पे दिस इज विड्थ ऑफ वेब, बी डब्ल्यू, विड्थ ऑफ वेब. सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो. दिस इज ए एस टी. ये हो गई इसकी बी विड्थ. यहां से लेके यहां तक का डेप्थ इज डी, इफेक्टिव डेप्थ, एंड यहां से लेके यहां तक का इट इज बी डब्ल्यू. ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले निकालना है कि इसके अंदर इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ कितना है. दैट इज द स्टेप 1. अभी मैं आपको लिखाऊंगा. एनालिसिस करना है मतलब हमें कुल मिला के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है. अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज कि आप ये निकालो व्हाट इज द इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ. ओके, व्हाट इज द इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ. तो हम इसे शुरू करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ. बी इफेक्टिव. ओके, इसको थोड़ा करेक्टली लिख देता हूं. दिस इज बी इफेक्टिव. ओके, बी इफेक्टिव. अब यहां पे बी इफेक्टिव जो होता है, इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ, दिस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ बी और बी एफ. ठीक है, इन दोनों में से जो भी छोटा आता है वो हमारे लिए आंसर है. बी और बी एफ, वट एवर इज द मिनिमम इज आर इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ. अब सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट फॉर टी बीम्स. ओके, टी बीम्स. ओके, देखो टी बीम्स के लिए मान लो आपको बीम समथिंग लाइक दिस कुछ ऐसा दिया है. यहाँ पे हम लोग विड्थ मान लेते हैं कुछ बी होगा, ऐसा ही दिया होगा स्टार्टिंग में. लेट्स से दिस इज ए एस टी. यहाँ से लेके यहाँ तक दिस डेप्थ इज डी. दिस इज
डेप्थ ऑफ फ्लेंच, दिस इज BW, और साथ में हमें ये कितना दे रखा होगा, दिस इज AST। ओके, ये सारी की सारी चीजें दे रखी होंगी। अब इसके अंदर हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BF। ओके, BF कितना होगा, तो यहां पे BF का वैल्यू विल बी L0 प्लस 4 प्लस BW। इसको याद रखना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज आस्क्ड इन एग्जाम्स। गेट में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछते हैं, SSC JEE में पूछ लेते हैं, आपका जो भी एग्जाम है उन सब में ये चीज आ जाती है, तो इसे ध्यान रखना है। वेयर L0 इज इफेक्टिव लेंथ और इट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अभी मैं आपको L0 बताता हूं। L0 देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, L0 एक्चुअली क्या है, ये वाला डिस्टेंस है। ओके, बीम का डिस्टेंस, नॉट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है, ये वाला डिस्टेंस हमारे लिए L0 के काउंट में आएगा। अब यहां पे अगर हमारा कंटिन्यूअस बीम है, फॉर कंटिन्यूअस बीम L0 इक्वल टू 0.7L। ठीक है, जो हमें क्लियर स्पान दे रखा है उसका 0.7 करेंगे तो हमें L0 निकल आएगा, इफेक्टिव लेंथ। और यहाँ पे ऑलराइट, कंटिन्यूअस बीम के लिए इट इज 0.7L, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर लेट्स से, कहाँ पे लिखूँ मैं, इस पार्ट को हटाते हैं, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम L0 इक्वल टू L। ठीक है, L0 इज इक्वल टू L। इस चीज को लिख लो प्लीज, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इससे। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम L0 इक्वल टू L है, फॉर कंटिन्यूअस बीम L0 इक्वल टू 0.7L, L0 अपॉन L0 बाय B प्लस 4 प्लस BW दैट इज इक्वल टू BF फॉर T बीम। अब आपको BF निकल आएगा और ये B हमें पता है, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, इसका B इफेक्टिव कितना है। वी हैव टू यूज B इफेक्टिव फॉर द एनालिसिस पर्पस। आगे जैसे जैसे प्रोसीड करते जाएंगे तो मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, अभी इसको लिख लो। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। T बीम्स के बाद में हमें नेक्स्ट देखना है L बीम्स के बारे में। सो नेक्स्ट इज L बीम्स, एंड यस I just forgot to mention कि this is for, this totally is for isolated, ये कॉमन पार्ट है, दिस इज कॉमन पार्ट। ओके, ये जो हमने किया है पहले आइसोलेटेड के लिए देख रहे हैं, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना के आपको बताता हूँ। पहले देखो, TNLB दो तरीके की है, एक हो गया आइसोलेटेड और एक हो गया मोनोलिथिक। ठीक है, मोनोलिथिक, आइसोलेटेड, मोनो। अब आइसोलेटेड में भी देयर इज अ टी बीम एंड देयर इज अ एल बीम, मोनोलिथिक में भी देयर इज अ टी बीम और यहां पर एक एल बीम है। ठीक है, तो वहां पे आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दिस स्टफ, तो इसको थोड़ा लिख लेना है कि आइसोलेटेड के लिए है। लेट दिस बी पॉइंट ए या कुछ ऐसा करके लिख लो। आइसोलेटेड के लिए हमने पहला देखा है टी बीम, अब आइसोलेटेड ही हम लोग देखेंगे एल बीम। तो यहां पे लेट मी चेंज द हेडिंग और लेट मी नेम इज आइसोलेटेड एल बीम। ठीक है, आइसोलेटेड ही हम क्या देख रहे हैं, एल बीम। अब देखो यहां पे this is BW, width of web, this is my AST, यहां से यहां तक this is D depth, this is B
और इसके बाद में दिस इज DF. ओके, अभी मैंने आपको क्या बताया, बी इफेक्टिव इज मिनिमम और बी मिनिमम, जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या होगा, मिनिमम होगा. तो इसके लिए द वैल्यू ऑफ BF इज, हमने टी बीम के लिए क्या लिखा था, L0 अपॉन L0 बाय B प्लस 4 प्लस BW. इसमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ में 0.5 लगा देना है, दैट्स इट. BW के अलावा जितना भी टर्म है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आधा कर दो. ठीक है, तो हमें आइसोलेटेड L बीम के लिए इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ निकल आएगा. ओके, आइसोलेटेड L बीम के लिए हमारे पास फ्लैंज विड्थ निकल आएगा. अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, दिस इज फॉर आइसोलेटेड टी बीम एंड एल बीम. नेक्स्ट हम लोग आते हैं फॉर मोनोलिथिक टी बीम एंड एल बीम. सो द नेक्स्ट वन इज मोनोलिथिक टी बीम्स एंड एल बीम्स. अब आपको क्वेश्चन के अंदर इट विल बी इजीली मेंशन कर रखा होगा कि आइसोलेटेड है या मोनोलिथिक है. इट विल नॉट बी लाइक कि हमें पता ही नहीं पड़ रहा है आइसोलेटेड है कि मोनोलिथिक है, दे रखा होगा क्वेश्चन में. सो डोंट वरी अबाउट दैट. देखो, इसका सबसे पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा, उससे समझ में आएगा. दिस इज द बिगर स्लैब और यहाँ पे ऐसे स्लैब्स हैं. ओके, और ये ऐसे की तरफ कुछ जा भी रहे हैं. ओके, इस तरीके से कुछ ये जा रहा है. अब नीचे मैं बना रहा हूं यहाँ पे अगर हम लोग मोनोलिथिक करते हैं तो ओके, देखो इस जगह पे व्हाट इज दिस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू BW, करेक्ट. अगेन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू BW. ओके, अब लेट अस से कि ये जो क्लियर स्पान है दिस इज L1 एंड दिस इज L2. ओके, और यहां से लेके यहां तक व्हाट इज दिस, दिस इज L. L हमारा क्या है, क्लियर स्पान ऑफ द बीम, बीम का क्लियर स्पान है. L1 L2 क्या है, अब ऐसे समझो ये रूफ है. ठीक है, रूफ में अलग अलग बीम्स डली होती हैं, तो हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. दिस इज L1 L2. अब देखो यहां पे ये B होगा, करेक्ट. अगर मैं T बीम्स के लिए बात करूं, यहां पे फर्स्ट लिखते हैं फॉर टी बीम्स. ठीक है, अगर मैं टी बीम्स के लिए बात करूं तो टी बीम के लिए हम लोग B कितना लिखेंगे, देखो जरा यहां पे कितना होगा, L1/2 प्लस BW प्लस L2/2, करेक्ट. कितना आएगा, L1/2 प्लस BW प्लस L2/2. ओके, ये हमारे लिए B आ जाएगा विड्थ. अगर मुझे BF निकालना है प्लस DF, L0/6 प्लस BW प्लस 6 DF. दिस इज माई BF फॉर T बीम. अब इनमें से जो भी मिनिमम होगा दैट विल बी माई इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ. आया समझ में. L1 L2 क्या है, क्लियर स्पान ऑफ द बीम. ओके, क्लियर स्पान ऑफ दिस स्लैब, ये वाला. L0 इज दिस इफेक्टिव स्पैन, BW इज विड्थ ऑफ वेब, और DF इज व्हाट, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ये वाला डिस्टेंस. दिस इज DF. थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे चीजें समझ में आ जाएंगी, इट्स नॉट दैट टफ. अब हम लोग लिख लेते हैं फॉर L बीम्स.
फॉर एल बीम्स। देखो अगर मुझे एल बीम के लिए लिखना है तो एल बीम के लिए मैं क्या लिखूंगा, विड्थ मेरा ये होगा। एल बीम के लिए किसके बराबर दिखता है ये, बी डब्ल्यू प्लस एल वन बाई टू। बी किसके बराबर आएगा, बी डब्ल्यू प्लस एल वन बाई टू। और मैं आपको बी एफ क्या बोला था, हमेशा क्या करना है, बी डब्ल्यू के अलावा जितनी भी टर्म्स है उसको हाफ कर दो। पिछले वाले में भी यही किया था, 0.5 लगाया था। बी डब्ल्यू के अलावा जो भी टर्म है उसको हाफ कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी डब्ल्यू के अलावा जितना भी टर्म है उसे हाफ कर देंगे। तो एल नॉट बाई 6 को हाफ करेंगे, एल नॉट बाई 12 प्लस बी डब्ल्यू एज इट इज, प्लस दिस विल बिकम 3df। दिस इज ओके। फिर इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा दैट विल बी आर बी इफेक्टिव। ओके, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ। अब इससे रिलेवेंट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमने एक्चुअली पढ़ा क्या है। ओके, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एग्जाम्पल इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, गेट, ईएसी, पीएसयू, किसी भी एग्जाम में मिल जाएगा, बड़ा कॉमन सा है। 1000 mm, this is let's say 300 mm, और यहां से लेके यहां तक this is let's say 500 mm। डायमेंशन दे रखा है and let's say it is 150 mm। effective span is let's say given to you as 6 मीटर्स। ठीक है, 6 मीटर्स दे रखा है हमें इफेक्टिव स्पैन। अब हमें इसके लिए बताना है व्हाट इज द इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ, और ये दे रखा है कि दिस इज एन आइसोलेटेड टी बीम। दिस इज आइसोलेटेड टी बीम। ठीक है, आइसोलेटेड टी बीम। अब देखो, अब इसको कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा है। बी इफेक्टिव क्या होता है, इट विल बी मिनिमम ऑफ बी और बी एफ। क्लियर, इन दोनों का मिनिमम होगा। कैपिटल बी हम लोगों को पता है दैट इज 1000 mm। अब बी एफ निकालना है, एल नॉट अपॉन एल नॉट बाय बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। करेक्ट। अब देखो एल नॉट किसके बराबर है, 6 मीटर यानी 6000 mm। बी कितना है, 1000 प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू इज 300। तो यहां पे दिस विल कम 6 प्लस 4 10, 600 and 300, दिस विल बिकम 900। ये हमारे पास समवेयर अराउंड कुछ 900 आएगा। यानी बी मेरे पास है 1000 और बी एफ मेरे पास है 900। तो इन दोनों में से जो मिनिमम है दैट इज माय इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ। अब हो सकता है आप सॉल्व करो, हो सकता है कि आपको बी एफ बी से ज्यादा आने लग जाए। ओके, बी एफ जो है वो बी से ज्यादा आने लग जाए, तो आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है ना। इन दोनों में से जो भी मिनिमम है हमें उसे ही सेलेक्ट करना है जो मिनिमम है। ऑलराइट, ओके। अब इसके आगे चलते हैं एनालिसिस पार्ट पे। एनालिसिस पार्ट पे बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। अगर आपको टी बीम का एनालिसिस समझ में आ जाएगा तो एल बीम का भी समझ में आ जाएगा। देयर इज नो डिफरेंस, कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों सेम ही है, एनालिसिस ऑफ टी बीम्स। अब एनालिसिस में फर्स्ट स्टेप, द स्टेप 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइंड बी इफेक्टिव। ओके, बी इफेक्टिव सबसे पहला काम है कि आप बी इफेक्टिव निकालें, विच इज अ मिनिमम ऑफ बी और बी एफ। इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको सबसे पहले निकालना है, वेदर इट इज आइसोलेटेड और वेदर इट इज मोनोलिथिक। तो आपको इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू को निकाल के रखना है, तभी हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहां पे लेट मी ड्रॉ दिस फिगर।
मी जस्ट ड्रॉ दिस। ओके, मान लो कि ये है हमारे लिए ए एस टी एंड लेट्स से दिस इज बी डब्ल्यू, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डेप्थ है दिस इज डी। ये हमारे लिए निकल आया बी इफेक्टिव, ध्यान रहे। ओके, एंड दिस इज लेट्स से डी एफ। ओके, अब यहाँ पे देखो इस जगह पे इधर लिखता जा रहा हूँ स्टेप 2 फाइंड एक्स से, फाइंड एक्स से, एक्स से निकालना हमारा स्टेप 2। सबसे पहला क्या है, बी इफेक्टिव निकालना है, उसके बाद में हमें एक्स से निकालना है। सबसे पहले एक्स से निकालेंगे, फिर एक्स सी निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे बिटवीन एक्स एंड एक्स सी, ओवर इन्फोर्स्ड है, अंडर इन्फोर्स्ड है, बैलेंस्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूवमेंट निकाल लेंगे। तो इट्स फेयरली वेरी इजी। आप स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कितना आसान है। अब फाइंड एक्स से हमारा पहला पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट। तो देखो यहाँ पे एक्स से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक्स से निकाल रहे हैं तो केस 1 इसमें मानते हैं। अब इसके एक्चुअली दो केस हो सकते हैं। दो केस कौन से हो सकता है कि एक्स से एक तो हमारा यहाँ पे लाई करे, ओके, और दूसरा हो सकता है कि एक्स से मेरा यहाँ पे लाई करे। तो एक तो हो सकता है कि एक्स से लेस देन डी एफ हो, और दूसरा हो सकता है कि एक्स से ग्रेटर देन डी एफ। देयर इज दिस पॉसिबिलिटी कि एक्स से लेस देन डी एफ हो और दूसरा एक्स से ग्रेटर देन डी एफ हो। तो हम पहला केस लेके चल रहे हैं दैट एक्स से इज लेस देन डी एफ। हम लोग ये चीज लेके चल रहे हैं, एक्स से लेस देन डी एफ। तो यहाँ पे इसे लेट मी मार्क इट विथ बबल कि ये हमारा केस 1 है, एक्स से लेस देन डी एफ। ओके, अब देखो अब क्या करेंगे, अगर एक्स से लेस देन डी एफ है तो यहाँ पे हमारा फिगर कैसा बनेगा आगे के लिए, लेट दिस बी डी एफ। अगर हम लोग इसे आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो इस एक्स के नीचे का कंक्रीट कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें फाइनली ये दिखेगा कैसे, दिस इज बी इफेक्टिव एंड दिस इज एक्स ए, करेक्ट। और यहाँ पे देयर विल बी दिस एम ए एस टी। अगर मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा तो स्ट्रेस डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस, इज इट ट्रू। और यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे इस तरीके से नहीं, वो डॉटेड कुछ बनेगा, सिंस यहाँ पे कुछ है नहीं। लेट मी जस्ट इरेज दिस स्टफ, वापस से बनाता हूँ। ये दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस, ओके। ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है। अब देखो अगर x से लेस देन डी एफ है, हम x से कैसे निकालेंगे, x से क्या होता है, दिस इज इक्वल टू x इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट बोथ द एक्सिस फ्रॉम कंप्रेशन एंड टेंशन। कंप्रेशन और टेंशन दोनों से करते हैं। तो देखो अगर मैं कंप्रेशन से करता हूं सो आई विल गेट बी इफेक्टिव इंटू एक्स ए बाय 2 दैट इज इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए। अगर ये एक्स ए है तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डी माइनस एक्स ए, करेक्ट, सिंपल सा। यहां से हमें क्या निकल आएगा, एक्स ए। लेट्स कम टू सेकंड। अभी स्टेप 2 का केस 1 चल रहा है, ओके। लेट्स कम टू स्टेप 3। एक्स से निकल गया, नेक्स्ट इज फाइंड एक्स सी। नाउ व्हाट इज एक्स सी, एक्स सी इज क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब सिंपली आपको पता है एक्स सी कैसे निकालते हैं, के डी के बराबर है एम सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी, ओके। दिस इज इक्वल टू एक्स सी। तो यहां से हमें मिल जाएगा एक्स सी। एक बार हमें मिल गया एक्स से, फिर हमें मिल गया एक्स सी। अब क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू कंपेयर, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है बिटवीन एक्स ए एंड एक्स सी। अगर एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी आता है तो दैट गिव्स अस दैट द सेक्शन इज ओवर इन्फोर्स्ड, और फिर वैसे ही स्टेप चलते जाएंगे जो हम पहले पढ़े हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस स्टेप वाज स्टेप 3। तो यहां पे लिखते हैं स्टेप 4,
कंपेयर एक्स ए एंड एक्स सी। तो आपको क्या करना है, एक्स और एक्स सी को हमें कंपेयर करना है। ए इफ XA is greater than XC, that gives us over reinforced section C equal to sigma CBC and T less than sigma ST. Okay, तो अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सिंस यहाँ पे स्पेस थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है तो आई एम यूजिंग दिस सिग्मा CBC है और यहाँ पे कितना आएगा T by M। स्टील में कितना है T by M। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग एवरेज स्ट्रेस लिख लें। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इनटू लीवर आर्म। प्लीज वीडियो को स्टॉप करके आप खुद से एक बार इसको लिखने की कोशिश करो। फोर्स इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस इनटू व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एरिया, बी इफेक्टिव इनटू एक्स ए इनटू व्हाट इज द लीवर आर्म, डी माइनस एक्स ए बाय 3। यानी हम लोग अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा CBC बाय 2 इंटू बी इफेक्टिव इंटू एक्स ए इंटू डी माइनस एक्स बाय 3। ओके, ये हमारे लिए एक्सप्रेशन आ गया फॉर ओवर रीइंफोर्स्ड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ए पार्ट था, लेट्स गो टू बी पार्ट। B, if XA equal to XC, that is अगर हमें बैलेंस्ड मिल जाए, ओके बैलेंस मिल जाएगा तो C इक्वल टू सिग्मा CBC एंड T इक्वल टू सिग्मा ST। कोई सा भी ले लो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है, कोई सा भी ले लिया, C इक्वल टू सिग्मा CBC एंड T इक्वल टू सिग्मा ST। तो यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आएगा, फोर्स इनटू लीवर आर्म एज यूजुअल, फोर्स इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस, ये लिख दिया। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एरिया, बी इफेक्टिव इनटू एक्स ए, व्हाट इज लीवर आर्म, डी माइनस एक्स ए बाय 3। तो अभी तक आपको ये चीज याद रहने लग रही होगी। ओके, जो भी चीजें हम लोग पढ़ते थे सेम वैसा का वैसा ही है ये। अब यहाँ पे डी माइनस एक्स ए बाय 3 एंड एवरीथिंग आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स ए इक्वल टू एक्स सी, दिस इज इक्वल टू के डी, और फिर रख के आप सॉल्व करोगे तो आपको एक एक्सप्रेशन और मिल जाएगा। अगर आप नहीं भी रखते हो तब भी इट इज कंप्लीटली फाइन। ओके, ये हमारा बी पार्ट हो गया, दैट इफ एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी, अगर ऐसा कुछ हो जाए। सी आते हैं, सी इफ एक्स ए इज लेस देन एक्स सी, दैट मीन्स इट इज एन under reinforced section. For under reinforced section, T equal to sigma ST and C less than sigma CBC। याद आ रहा है चीजें, C less than sigma CBC। तो यहाँ पे हम जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, ओके, दैट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस, तो हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, सिग्मा ST बाय M इंटू MAST, लीवर आर्म इज D माइनस एक्स ए बाय 3। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा AST इंटू D माइनस एक्स ए बाय 3। और दूसरा तरीका क्या है, हम इसको प्रोसीड करें फ्रॉम द कंप्रेशन साइड। ओके, कंप्रेशन साइड से प्रोसीड करें तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा, सिर्फ स्लाइट वेरिएशन, चेंज किस में आ जाएगा। देखो, अगर मैं इसको कंप्रेशन साइड से ले जाता हूं, फोर्स इनटू लीवर आर्म, दिस फोर्स इज इक्वल टू इंटू बी इफेक्टिव इंटू एक्स ए इंटू डी माइनस एक्स ए बाय 3, ओके, इंटू डी माइनस एक्स ए बाय 3। ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन साइड। सिर्फ अब इशू क्या है, आपको ये सी निकालना है। ओके, सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम था। ओके, दिस इज सी हियर
दिस इज सिग्मा एस टी बाय एम हियर, यहाँ पे दिस इज एक्स ए एंड दिस इज डी माइनस एक्स ए। तो यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत बार देखा है ऐसा, सी अपॉन एक्स ए दिस इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाय एम डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स ए। सो फ्रॉम हियर हमें सी का वैल्यू निकल आएगा, बट इसके अंदर ध्यान क्या रखना है कि ये जो सी आएगा दैट शुड बी लेस देन सिग्मा सी बी सी। ओके, दिस सी शुड बी लेस देन सिग्मा सी बी सी। ऑलराइट, ये हमारा केस 1 था। ओके, दिस वाज अ केस 1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब ये हमारे लिए केस 1 है, अब केस 2 क्या है? ओके, केस 2 क्या है? देखो, केस 2 में फर्स्ट स्टेप तो वही है कि आपको बी इफेक्टिव निकालना है, देन एक्सए में चेंज आएगा। केस 2 क्या है? इफ XA is greater than DF, okay, if XA is greater than DF, तो देखो यहाँ पे मान लो दिस इज बी इफेक्टिव, हम निकाल चुके हैं ये, this is D and then we have, let's say this is DF, depth of flange, let's say it is BW, okay, और यहाँ पे समझो x से हमारा समवेयर अराउंड कुछ यहाँ पे है, ओके, इस जगह पर हमारे लिए x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे? दिस इज x से, तो देखो x से निकालने के लिए सबसे पहला काम है कि इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड 2 पार्ट्स। सबसे पहला ये पार्ट, ओके, और दूसरा बनेगा एक और पार्ट। आगे बनाता हूं इसको, मे बी आई विल राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज इटसेल्फ, ओके। इसके लिए आई एम टेकिंग सम पोर्शन ऑफ AST1 and for this I will take some portion of AST2। ओके, मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को यहां से बाइफरकेट कर दिया, ओके, इस जगह से तोड़ दिया। इसको मैंने बोला पार्ट 1 एंड दिस इज फॉर मी पार्ट 2, ठीक है। एक हमारे लिए हो गया पार्ट 1 और दूसरा हमारे लिए क्या हो गया, पार्ट 2। मैंने क्या किया, अब x से मेरा इतना बड़ा था तो उसके लिए व्हाट आई डिड, मैंने इसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया। ये हमारे लिए हो गया बी इफेक्टिव। अब ये डेप्थ कितना होगा, दिस इज इक्वल टू DF, करेक्ट। दिस विड्थ विल बी इक्वल टू पार्ट 2 BW, और ये कितना बचेगा, XA माइनस DF, ओके, XA माइनस DF। जनरली आपको ये वाला केस दिया होता है, LSM होगा तब भी इसी तरीके से होगा, स्लाइट वेरिएशन है, स्लाइट वेरिएशन। कहने का मतलब ये, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है, तो आपको WSM कुछ भी नहीं आएगा, LSM कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ओके, इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कि इसके अंदर XA कैसे निकालें। देखो, मैं आपको XA निकालना बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पर ही आते हैं, यहाँ पे निकलेगा नहीं, XA निकालना है, XA निकालेंगे, XA निकालेंगे, देन वील कंपेयर, ओके। तो XA कैसे निकलेगा, मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट बोथ द साइड्स ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इसे हमने क्या करना है, इक्वेट करना है, हमने इसे इक्वेट करना है। देखो यहाँ पे, अगर मैं पहले वाले पार्ट को लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, बी इफेक्टिव इंटू DF इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का दिस डिस्टेंस। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू XA माइनस DF बाई 2, ओके, दिस इज XA माइनस DF बाई 2। तो उसी चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया कितना है फर्स्ट वाले पार्ट का, बी इफेक्टिव इंटू DF इंटू
कितने डिस्टेंस में, एक्स से माइनस डी एफ बाई टू, दैट इज इक्वल टू एम ए एस टी वन इंटू डी माइनस एक्स है। दिस इज ओके। अब सेकेंड पार्ट के लिए आते हैं। फॉर सेकेंड पार्ट के लिए देखें, एरिया कितना है, बी डब्ल्यू इंटू एक्स ए माइनस डी एफ, बी डब्ल्यू इंटू एक्स ए माइनस डी एफ, और यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स ए माइनस डी एफ डिवाइड बाय टू, करेक्ट, एक्स ए माइनस डी एफ डिवाइड बाय टू। सो दिस इज इक्वल टू बी डब्ल्यू इंटू एक्स ए माइनस डी एफ, दिस इज एरिया, कितने डिस्टेंस पर लाई करेगा, एक्स ए माइनस डी एफ बाई टू, दैट इज इक्वल टू एम ए एस टी टू इंटू डी माइनस एक्स है, करेक्ट। अब हमारा जो टोटल बीम बना हुआ है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 का बना हुआ है, तो हम एक्स से निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को वी विल ऐड, इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे, क्या बनेगा, बी इफेक्टिव इंटू डी एफ इंटू एक्स ए माइनस डी एफ बाई टू प्लस बी डब्ल्यू इंटू एक्स ए माइनस डी एफ का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, दैट इज इक्वल टू एम ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू, दोनों मिला के क्या बना देंगे, ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स है, ओके, एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स है, ये बना देंगे, ओके। अब क्या करेंगे, जब आपके पास एक्स ए निकल आया है, ओके, यहां से यू विल फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ए। जैसे आपके पास एक्स ए आ जाएगा, सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सी। सो वेरी सिंपल, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, फाइंड एक्स सी, तो एक्स सी इज इक्वल टू के डी एम सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स सी, तो आपको यहां से एक्स सी का वैल्यू मिल जाएगा, हमें एक्स ए का वैल्यू पता है, एक्स सी का वैल्यू हमें पता चल गया है। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या इसके अंदर स्टेप रहेगा, तो नेक्स्ट इज कि आप इसके अंदर निकालो कंपैरिजन, कंपेयर एक्स एंड एक्स सी। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, रेस्ट आई गेस आप लोग समझ जाओगे। इफ एक्स ए इज लेस देन एक्स सी, दिस इज इक्वल टू अंडर इनफोर्स सेक्शन, ओके। अब जब भी मैंने आपको पहले क्या बोला था, आपको टेंशन साइड से नहीं जाना है, ऑलवेज यू विल हैव टू गो फ्रॉम कंप्रेशन साइड ओनली, ताकि आपको एक ही चीज ध्यान रखनी पड़े, अगर आप डब्ल्यू इनफोर्स बीम का भी क्वेश्चन करोगे, यू विल हैव टू गो फ्रॉम कंप्रेशन साइड ओनली, हमें टेंशन साइड से नहीं जाना है, ओके। सो दिस इज टी इक्वल टू सिग्मा एस टी एंड सी लेस देन सिग्मा सी बी सी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक निकालेंगे पार्ट 1 का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक निकालेंगे पार्ट 2 का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। अब देखो, रेजिस्टेंसेस निकालने के पहले यहां पे आई एम ड्राइंग इट्स स्ट्रेस डायग्राम, देखना स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज सिग्मा एस टी बाय एम, ये इस वाले पार्ट के लिए, ओके। इस वाले पार्ट के लिए स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, ये कुछ भी नहीं है यहां पे, अब ये चीज है और यहां से ये वाला फिगर है, दिस इज सिग्मा एस टी बाय एम, लेट मी कॉल दिस एज सी एंड दिस इज सी डैश, तो यहां पे ये कितना आएगा, सी डैश। आपको बेसिक मैकेनिज्म समझना है इसका, रटना नहीं है, रटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बेसिक मैकेनिज्म समझना है, ओके। अब देखो यहां पे देयर इज एक्टिंग दिस कंप्रेसिव फोर्स, ये कंप्रेसिव फोर्स समवेयर अराउंड दिस कुछ यहां पे एक्ट कर रही है, इसको मैं बोल देता हूं दिस इज माय कैपिटल सी कंप्रेसिव फोर्स, ओके। और ये हमारे लिए क्या है, टेंसाइल फोर्स। तो इसके लिए ये हमारे लिए कुछ आएगा एक्स बार, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लेवर आर्म डी माइनस एक्स बार, लेवर आर्म इज डी माइनस एक्स बार, आ रहा है समझ में। एक्स बार मैंने क्या लिखा है, इस ट्रेपीजियम का सीजी है, दिस इज सीजी ऑफ दिस ट्रेपीजियम, तो मेरे लिए लेवर आर्म कितना हो जाएगा,
इस ओवरऑल d में से मैंने x बार को माइनस कर दिया, तो ये मेरे लिए आ गया d माइनस एक्स बार। अभी x बार कैसे निकालेंगे, आई विल टेल यू। तो अब यहाँ पे अगर मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू लेवर आर्म। लेवर आर्म फिक्स हो गया, कितना हुआ, d माइनस एक्स बार। फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस इनटू करस्पॉन्डिंग एरिया। व्हाट इज द एवरेज स्ट्रेस, c प्लस c डैश बाय 2, c प्लस c डैश बाय 2। ओके, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे m1 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1, दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेवर आर्म। नाउ व्हाट इज फोर्स, एवरेज स्ट्रेस c प्लस c डैश बाय 2, corresponding area b effective into df into lever arm d माइनस एक्स बार। ठीक है, d माइनस एक्स बार। देख लो, c प्लस c डैश बाय 2 एवरेज स्ट्रेस, corresponding area is this, b effective into df, this is our corresponding area। अब corresponding area निकालने के बाद में आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स आ गया, फोर्स इंटू लिवर आर्म, लिवर आर्म इज d माइनस एक्स बार। ओके, तो यहां तक थिंग्स आर क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे m2 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2, सॉरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 कितना आएगा, फोर्स इंटू लिवर आर्म। देखो अब इसके लिए कंप्रेसिव फोर्स यहां पे एक्ट करेगा, टेंसाइल फोर्स यहां पे एक्ट करेगा। ओके, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, दिस टोटल डिस्टेंस इज x से माइनस डी एफ, करेक्ट, x से माइनस डी एफ। तो इसका सी जी यहां पे कितना आएगा, दिस इज x से माइनस डी एफ बाय 3। ओके, x से माइनस डी एफ बाय 3। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ओवरऑल सिर्फ ये वाला डिस्टेंस ही चाहिए, आई वॉन्ट ओनली दिस डिस्टेंस, मुझे सिर्फ ये लिवर आर्म चाहिए। कैलकुलेशन है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बिकम वेरी इजी, कुछ भी खास नहीं है। यही मेरे लिए क्या है, लिवर आर्म है। तो अगर मैं ये निकालना चाहता हूं, दिस लिवर आर्म, ओके, ओनली दिस लिवर आर्म, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, ये हो गया हमारे लिए x से माइनस डी एफ बाई 3, ये ओवरऑल मेरे लिए कितना हो गया, डी एफ के बराबर। तो लिवर आर्म कितना आएगा, ओवरऑल d माइनस x से माइनस डी एफ बाई 3 प्लस डी एफ, यानी मैं टोटल ये वाला लेंथ माइनस कर रहा हूं, x से माइनस डी एफ बाई 3 प्लस डी एफ, ये मेरे लिए क्या आ गया, लिवर आर्म आ गया। अब मेरे पास लिवर आर्म है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट व्हाट इज द स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस, c डैश प्लस 0/2 इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया इज दिस bw इंटू एक्स माइनस डी एफ। ओके, bw इंटू एक्स माइनस डी एफ। अब देखो m2, what is this m2, force into lever arm, c dash plus 0/2 corresponding area def into यहाँ पे lever arm। अब lever arm कितना था, this is equal to कैपिटल D माइनस एक्स ए माइनस डी एफ बाई 3 प्लस डी एफ। इसमें से कोई सा भी इक्वेशन आपको रटना नहीं है, अगर आपने इक्वेशन को रटने की कोशिश करी तो इट विल क्रिएट अ ब्लंडर, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आपको इक्वेशंस को रटना नहीं है, इन्हें समझना है कि ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, किस बेसिस पे ये प्रोड्यूस हो रही है। ओके, ये चीज समझनी है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, m1 m2 आ गए। अब c और c डैश तो आई गेस आप लोग निकाल लोगे, है ना, c और c डैश निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स एंड ऑल, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल आएगा। ओके, सो यहाँ तक आपको थ्योरी समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आता है कोई, तो इसका न्यूमेरिकल कैसे होगा। ओके, तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे टू फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ टी बीम गिवन द फॉलोइंग डेटा। ओके, तो देखें, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। प्लीज मेक योर नोट्स ऑल्सो, आप कॉपी में लिखते जाओ, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहाँ पे देख रहे हो, कंप्लीटली आपको नोट्स बनाते जाने, बिल्कुल कोचिंग के जैसा ही है, ऑफ
isolated T beam shown in figure of a simply supported beam having span equal to 6 meter, use M20 grade Fe415 steel and take M इक्वल टू 13। इन्होंने बोला है कि आप M को 13 ही लो, और यहाँ पे फिगर बना रखा है। वन 200 mm दे रखा है। दिस इज गिवन एज 300 AST. This is given as 500 and this is given as 150. ओके, और ये है हमारे लिए AST। तो एरिया ऑफ स्टील किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 420 mm ये दे रखा है। अब हमें इसका क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज इट्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, मैं भी आपके सामने ही पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड आई वांट कि आप लोग इनिशियल स्टेजेस में कोई थोड़ी हैबिट डाल लो कि जैसे आपको क्वेश्चन दिखता है, पॉज द वीडियो, ट्राई टू थिंक अबाउट दिस कि क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसीड करें, फर्स्ट स्टेप क्या है, ट्राई टू सॉल्व दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग योर एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, ऑल राइट, तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। द फर्स्ट step is to calculate B effective, that is equal to a minimum of B or BF, whichever is minimum। पहला पार्ट ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे BF निकालना है, that is equal to L0 upon L0 by B plus 4 plus BW। L0 is 6000, 6 मीटर स्पैन दे रखा है, 6000 by 1200 plus 4 plus 300। ओके, लेट मी सॉल्व दिस। ये कितना आएगा? दिस इज 966.67 mm। 966.67 mm। बी मुझे दे रखा है 1200 mm और ये मेरे लिए आ रहा है 966, यानी कुछ 967 mm ले लेते हैं। यानी हमारे लिए इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ कौन सी हो जाएगी? मिनिमम वाली BF 967। ओके, अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे एक फिगर बना लेते हैं जिसके अंदर काम के डेटा लिख लेते हैं। ये बीम है, इस पे हमें ये दे रखा है 967 mm, दिस इज आई गेस 150। ये हमारा AST है और यहाँ पे दिस इज 500। ओके, यही डेटा दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 500, 150 और ये 300, दिस इज 300। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एरिया ऑफ स्टील भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर, 1256 mm square। This is my area of steel in tension। M20 Fe415 को यूज करना है, यानी इसके लिए अगर मैं सिग्मा CBC लूंगा, दिस विल बी 7 और इसके लिए सिग्मा ST इज 230। ओके, अगर आपको ये चीज़ नहीं लग रही है तो आपको स्टार्टिंग से देखने की ज़रूरत है। किसी को अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए तो प्लीज़ गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें सिग्मा CBC और सिग्मा ST बताया है और मैंने वहाँ पे ये भी बताया है कि कंप्लीट जितना भी लेक्चर चल रहा है वो सारा का सारा किसमें, एक सीरीज़ में है। तो आपको पहले लेक्चर से लेके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना होगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये यहाँ पे मजाक नहीं है कि आपको 1 घंटे में या 2 घंटे में RCC खत्म हो जाएगा। ओके, RCC विल टेक 30-40 आवर्स, आराम से इट विल टेक। ओके, अब देखो
AST को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1256 mm², सिग्मा CBC is 7 Newton per mm², and sigma ST is 230 Newton per mm², और m का वैल्यू हमें दिया है 13। ओके, m का वैल्यू हमें दिया है 13। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XA। फर्स्ट स्टेप, फाइंड XA, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? टू फाइंड XA। देखो XA निकालना है, लेट अस अज्यूम लेट XA इज लेस देन DF। राइट नाउ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि XA DF से कम आएगा या ज्यादा आएगा। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि XA कुछ लेस देन DF है। ओके, अगर सही साबित हो जाता है तो हमें सेकंड केस अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, नहीं होता है तो हमें सेकंड केस अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम दैट XA इज लेस देन DF। ओके, अगर XA लेस देन DF है तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इफ XA इज लेस देन DF, सो देन दिस इज, यहां पे कुछ बना लेते हैं, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, मिक्सअप नहीं होंगे, इसको मान लेते हैं। ओके, तो यहां पे दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज 967, यहां से लेके यहां तक इट इज XA, और यहां पे दिस इज MAST, करेक्ट। तो यहां पे हमारे लिए XA कैसे निकालेंगे? 967 इंटू XA बाय 2, दैट इज इक्वल टू MAST इंटू D माइनस XA, यानी 967 इंटू XA² बाय 2, दैट इज इक्वल टू M इंटू 1256 इंटू D इज 500 माइनस XA। अब मैंने आपको कैल्सी में ये निकालना सिखाया है, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को, ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, आप लोग भी करो, मैं भी कर रहा हूं। दिस विल कम आउट टू बी, ये कर रहा है, आपको दिख जाएगा समवेयर अराउंड, आपको दिख रहा है 114 कुछ आ रहा है। ओके, 114 कैसे निकाला आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पता पड़ जाएगा, हम लोग कैसे निकालते हैं इतना जल्दी। 114.15 mm, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा। XA हमारे पास आ गया। अब देखो मेरा DF कितना था? 150 था, XA लेस देन 150 आ गया। दैट मीन्स ये वाला जितना केस है दैट इज ट्रू फॉर मी। तो अब मुझे सेकेंड केस पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये फॉल्स हो जाता, मैंने माना है कि XA लेस देन DF है, यानी XA लेस देन 150 है, और अगर XA ग्रेटर देन 150 आ जाता बाय एनी मीन्स, तो हमें क्या करना पड़ता? तो हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता। ओके, सेकंड केस पे आते हैं, बट अभी के लिए ठीक है, XA ये आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, फाइंड XC। ठीक है, XC किसके बराबर आएगा? KD M सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC इंटू D। ओके, M दे रखा है 13, सिग्मा CBC 7 अपॉन 230 प्लस 13 इंटू 7 इंटू डेप्थ इज 500। तो यहां से XC निकल आएगा, दिस इज into 500, this will give us somewhere around 141.74 mm. Okay, 141.74। अब मेरे पास XA आया था समथिंग 114, XC मेरे पास आया 141, यानी थर्ड इज टू कंपेयर XA एंड XC। आपको XA और XC को कंपेयर करना है। यहां से दिखता है दैट XA is less than XC, that means section is under reinforced। under reinforced है तो I will go with T equal to sigma ST और C less than sigma CBC, ऐसा कुछ रहना चाहिए। अब मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म
ये एग्जैक्टली आपको बीम के जैसे ही लिखता है ना, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपका पहला केस आ जाए तो दैट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक अ बीम, बीम के जैसे ही है। तो देखो यहाँ पे एक्स ए लेस देन एक्स सी अंडर reinforced सेक्शन T इक्वल टू सिग्मा एस टी, C लेस देन सिग्मा सी बी सी। ना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म। फोर्स कितना होगा, एवरेज स्ट्रेस आई विल गो फ्रॉम कंप्रेशन साइड इनटू बी इफेक्टिव इनटू एक्स ए, लीवर आर्म इज d माइनस एक्स बाई 3। आई होप आप इस इक्वेशन को बिना फिगर देखे भी लिख पा रहे हो। अगर आप मेरे साथ में क्वेश्चंस करते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो इक्वेशन आप डायरेक्टली भी लिख पाओगे। अब मेरे पास काम क्या है, मुझे यहाँ पे c का वैल्यू निकालना है। ओके, आई हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। देखो ये स्ट्रेस डायग्राम है, दिस इज c, दिस इज सिग्मा एस टी बाय एम, एक्स से हो गया, दिस इज व्हाट d माइनस एक्स। तो यहाँ पे निकालते हैं C upon XA, this is equal to sigma ST by M divided by D minus XA. Okay. XA हमारे पास में आ रहा है 114.15, that is equal to 230 divided by 13 upon 500 minus 114.15। तो यहाँ से हमें C का वैल्यू निकलेगा 5.23 मेगा पास्कल, और लेट्स से न्यूटन पर mm स्क्वायर, सेम चीज़ है। को C कितना आ रहा है 5.23, और मेरे पास आना कितना था, C लेस देन सिग्मा C, 7 से कम आना चाहिए था, दैट मीन्स इट इज फाइन। अब मेरे पास C का वैल्यू है, आई हैव एवरीथिंग, एक्स इज 114.15, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, C इज 5.23 by 2 इंटू बी इफेक्टिव इज 967, 114 that was 114.15 into 500 minus divided by 3। इसको मैं सॉल्व करूंगा, I will get some value of moment of resistance। वन 133.34 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ओके, न्यूटन mm मुझे यूनिट अच्छा नहीं लगता, तो ये कितना आएगा 133.34 किलो न्यूटन मीटर। ओके, 133.34 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जैक्टली सेम चीज यू विल बी डूइंग इन LSM ऑल्सो। ओके, कोई चेंज नहीं है, कोई खास चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एक ये जो मेथड आपने किया है, हो सकता है कि x से ग्रेटर देन DF आ जाए आपको। इस वाले केस में हमें x से लेस देन DF से हमारा काम चल गया था, हो सकता है नेक्स्ट केस में आपको x से ग्रेटर देन DF आ जाए। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए किस तरीके से प्रोसीड कर रहा है पार्ट। ऑलराइट, सो आई गेस दिस इज इट। आपको समझ में आया होगा कि WSM में क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आई टोल्ड यू, WSM अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो LSM में 100% प्रॉब्लम आना है। सो एट दिस स्टेज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कंसेप्चुअल बैकग्राउंड, सब कुछ हम कर चुके हैं फॉर LSM। LSM के लिए एक अच्छा बेस बन चुका है। अब LSM बहुत स्पीड में होगा, बहुत जल्दी होगा, और उससे आपको एक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। बिफोर प्रोसीडिंग टू LSM, इट इज़ अगेन एडवाइज टू प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स वन बाय वन, जितने भी मैंने पढ़ा है ऑफ WSM। डो नॉट थिंक इन दिस मैनर कि ये एग्जाम में नहीं आता तो इसे नहीं पढ़ें। अगर आपको WSM नहीं आएगा तो मार्क माई वर्ड्स, आपको LSM अच्छे से समझ नहीं आएगा, आप रटने लग जाओगे, आप उसको मगअप करोगे। हमें वो नहीं करना है, हमें इसको समझना है। ओके, ऑलराइट, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड विल स्टार्ट ऑफ विथ LSM।